Assalamu alaikum. My name is Dr. Magia Knight and I'm Senior Registrar in Surgical Unit 2. Today's our topic of discussion is shock and hemorrhage control. Next, Neura. Ji. Okay, what are the learning objectives of this lecture? Basically, in this lecture, we will talk about the introduction of the shock, what is shock, what are the different types of the shock, what are the different degrees of the severity of the shock, and what are the clinical manifestation of the shock, how we will manage the shock patient, and being surgeon particularly, we will talk about the management of shock, hemorrhagic shock due to the trauma, and what are the differences between the different types of the shock. When we talk about the shock, there are the certain important learning skills. What are those skills? We must know how to save the peripheral vascular access, that is how to save the IV line, and how to pass the central venous access, and how to give the intraosseous infusion. We will discuss all these things in detail later on. Uh, First of all, again, I will tell you what is shock. Basically, what is shock? This is the abnormality of the circulatory system. This abnormality of the circulatory system results in inadequate oxygen, organ oxygen perfusion, and tissue oxygenation. So what happened is there is the inadequate supply of oxygen to the peripheral tissue. That may be either because of the volume loss. So when there's a less amount of the volume, there's less amount of blood, so there will be the less oxygen carrying capacity. So there will be the less tissue oxygenation. The most important thing in the management of the shock is to recognize the shock. हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा पेशेंट जो है वो शॉक में है कि नहीं है. And this recognition or this diagnosis is always made on the clinical grounds. Immediately we have to decide whether our patient is in shock or not, because shock is a dire emergency. We can't waste time in making the diagnosis, so we have to make the spot diagnosis by the clinical assessment. So by clinical assessment, we will label the patient as a shock patient, and we will immediately start our response, that is in the form of fluid resuscitation. And we won't go that what is the cause of the shock. ठीक है. So first step में सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा patient shock में है. हमने ये decide कर लिया कि yes, our patient is in shock. We will immediately start our response, that is in the form of volume resuscitation. उसको हम volume fluids देना शुरू करेंगे और हम किसी lab test का इंतज़ार नहीं करेंगे. और फिर second step में हम जो है वो cause को identify करेंगे कि what is the cause of that shock. अच्छा. There are different types of shock. Shock can be the hemorrhagic shock and the non-hemorrhagic shock. Two basic main types हैं, hemorrhagic shock, non-hemorrhagic shock. As the name is indicating, the hemorrhagic shock is because of blood loss. ठीक है? और most common cause of hemorrhagic shock is trauma. So the first type of the shock is the hemorrhagic shock, which most commonly is seen in the trauma patient, or that may be because of the some kind of iatrogenic injury during the surgical procedures. So being surgeons, we most commonly deal with this type of the shock. And then we have the second type of shock, that is non-hemorrhagic, and that is further dividing into the different types. That may be because of the cardiac issues, which is called as the cardiogenic shock. That may be because of the neurological issues, which is called the neurogenic shock, and that may be because of the severe infection, which is called as septic shock. Basically, when we talk about cardiogenic shock, our heart is a pump which pump the blood to the whole body, and that blood takes the oxygen to the whole tissues of the body. So in this way, they provide nutrients to the whole tissues of the body. So if there is any kind of problem or any kind of the abnormality in the pump, that is heart, then blood will not go into the peripheral tissues and patient will go into the shock. What are the different conditions in which the cardiac shock is seen? Number one, this is seen in the cardiac tamponade. This is seen in tension pneumothorax, and this is seen in myocardial contusion. What is cardiac tamponade? Cardiac tamponade क्या है? This is a condition in which blood accumulate in the pericardium. And what is pericardium?
pericardium is the covering which is present around heart, which we all know. So what happens is when the blood accumulates in the pericardium, that exerts the constrictive forces on the heart. So this hinders in the dilatation of the heart. So when heart cannot dilate, it cannot receive the adequate volume which is coming back to the heart from the peripheral bodies via veins. When heart is not receiving the adequate input, obviously there will be decrease in the output of the heart. So when the output is decreased, the patient will develop the shock. So this is the mechanism of cardiogenic shock in cardiac tamponade. Second condition which is in which the cardiogenic shock is seen is tension pneumothorax. What is the tension pneumothorax? Pneumothorax. Pneumo mean air and thorax mean obviously your thorax or chest. That means the accumulation of the air in your pleural space. So the accumulation of the air in the pleural space is called as pneumothorax. And tension का word तब add करते हैं when there is accumulation of excessive amount of the air in the pleural space. So what happens is in this case there is a one valve mechanism. क्या होता है कि one valve mechanism में air can only enter into the pleural space but it cannot leave the pleural space in pneumothorax. So with each respiration or each breathing cycle, air goes into the pleural space but it cannot comes out of the pleural space. As a result, with the passage of time, the excessive amount of air collected in the and this exerts the massive constrictive force over the lungs and as well as on the heart. And rest of the mechanism is again same as in the cardiac tamponade. Obviously this hinders in the dilatation of the heart. When it will hinders in the dilatation of heart, there will be decrease in the input, and when there will be less input, obviously there will be the less output and the patient will go into the shock state. Then we have the third condition, that is the myocardial contusion. This myocardial contusion, which is seen in the blunt trauma patients. What happens is in the blunt trauma patient, the patient is having any kind of the thoracic injury or the chest injury, there may be contusions in the muscles of the heart. So when there will be damage to the muscles of the heart, that will hinder the pumping ability of the heart. So these patients will again, when the our pump is not adequately pumping the volume, so there will be the decrease in the cardiac output and patient will go into the shock state. So third form of non-hemorrhagic shock is the neurogenic shock. That is because of the neurological issues. Always remember the isolated intracranial injuries, that is only the injuries of the brain, only brain injuries, they cannot cause neurogenic shock. So whenever the patient presenting with a head injury, if he is in shock, we won't label that patient as the neurogenic shock, because the neurogenic shock is mainly produced by the spinal cord injuries. So what is the mechanism of neurogenic shock? The mechanism of the neurogenic shock is there is patient will have spinal cord injury, and that spinal cord injuries, patient will have damage to the sympathetic system. So there will be loss of the body response, body's natural responses to conserve the volume, and patient will go into the shock. I will tell you it later on in the great detail. Then come the septic shock. Again, the septic shock is mainly because of the severe sepsis or severe infection. What is the basic cardiac physiology? This we all know very well. Just to have a short overview, cardiac output is equal to stroke volume and heart rate. And stroke volume mainly depends on three factors: the preload, which we are already talking about, it depends upon the afterload, and it depends upon myocardial activity. इन तीन चीज़ों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. तो कार्डिक आउटपुट यानी कि जो आउटपुट आपका हार्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो वो हार्ट की पंपिंग रेट पे डिपेंड करती है, दूसरा ये हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करती है. और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है यानी कि जो हार्ट के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, वो वॉल्यूम डिपेंड करता है प्रीलोड के ऊपर, द वॉल्यूम विच इज कमिंग टू हार्ट, और इट डिपेंड्स ऑन द आफ्टर लोड एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट किस तरह से किस क्वालिटी से पंप कर रहा है और कितनी अमाउंट आगे पंप कर रहा है. So preload depends upon the volume. जितना आपका circulatory system में volume होगा उतना ही आपका preload होगा. दूसरा, this depends upon the venous capacitance. Venous capacitance का क्या मतलब है कि if there is for example vasodilatation, अगर आपकी veins की dilatation होती है तो क्या होगा? There will be accumulation of the more amount of the fluid in the peripheral systems, and there will be less fluid is coming back to heart. When the less amount of fluid is coming back to heart, there will be
decrease in the preload. When preload will be less, again there will be decrease in the afterload. जब input ही कम है तो obviously heart के बाहर जो volume जाएगा वो भी कम होगा and patient will go into the state of shock. Myocardial contractility क्या है जी? Obviously this is the ability of the heart to contract, ability of the heart to pump the blood to the whole body. Okay, and afterload is the resistance, which is peripheral vascular resistance, that is the resistance of your circulatory system. So this is the short overview of physiology, and this all you know. Acha, no more. This is the important slide, that is the compensatory responses. क्या होता है? आपका patient है, he's had some kind of the trauma, ठीक है, he had some kind of the trauma. During that trauma he had blood loss हो गया, तो अब क्या होगा? अब क्या है कि नेचर ने जो है हर चीज़ में कुछ ना कुछ कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज बनाए हैं. तो जैसे ही ब्लड लॉस होता है तो बॉडी के अंदर देयर आर सर्टेन कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज व्हिच स्टार्ट देयर एक्शन. सो व्हाट हैपन इज दीज कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज दे try to conserve the volume, and they try to maintain the blood pressure as close to the normal as possible. ठीक है जी. तो जैसे ही ट्रॉमा हुआ, ब्लड लॉस हुआ, बॉडी ने जो है वो फौरन अपना रिस्पॉन्स देना शुरू किया. और ये रिस्पॉन्स किस फॉर्म में हमें नजर आता है? ये हमें नजर आता है इन द फॉर्म ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड टेकिकार्डिया. ठीक है जी. जैसे ही वॉल्यूम लॉस हुआ तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी. वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या कि आपके सारे जो पेरिफेरल वेसल्स में ब्लड है, तो वो पेरिफेरल वेसल्स जो हैं वो दे विल इमीडिएटली कंस्ट्रिक्ट एंड दे विल पुश द ब्लड बैक टू द हार्ट, ताकि कार्डिक आउटपुट को इम्प्रूव किया जा सके और कार्डिक आउटपुट को मेंटेन द कार्डिक आउटपुट एज क्लोज टू द नॉर्मल एज पॉसिबल. सो पहला रिस्पॉन्स जो बॉडी का लॉस ऑफ वॉल्यूम को होगा, दैट विल बी द वेजो कंस्ट्रिक्शन. सेकेंड विल बी टेकिकार्डिया. ठीक है, हार्ट भी अपना जो है वो एक्शन तेज कर देगा. तो इसमें क्या होगा कि दे विल बी इंक्रीज हार्ट रेट, दे विल बी इंक्रीज रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो ज्यादा अमाउंट को जो है वो पेरिफेरल बॉडी टिश्यूज में भेज सके. ठीक है जी. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए पल्स प्रेशर. पल्स प्रेशर क्या होता है कि पल्स प्रेशर इज बेसिकली दिस इज द डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आउटपुट कम हो रही है तो सिस्टोलिक प्रेशर नीचे गिरता है. आपने देखा है कि शॉक के जो आपके पेशेंट प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है. तो क्या हो है, सिस्टोलिक प्रेशर उनका कम हो रहा होता है, लेकिन उनका डायस्टोलिक जो है वो बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका पल्स प्रेशर कम हो जाता है. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जब व्हेन एवर देयर इज अ लॉस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड लॉस हो जाता है, वॉल्यूम कम है, तो अमाउंट ऑफ द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू पेरिफेरल टिश्यू वो भी कम हो गई. तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन भी कम होना शुरू हो जाती है. तो क्या है कि जो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है वो एरोबिक सिस्टम से एनएरोबिक सिस्टम में शिफ्ट हो जाता है. ठीक है जी. क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो बॉडी ने अपना जो है वो, अगेन ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है बॉडी का, ताकि वो अपना फंक्शन मेंटेन कर सके, वो एनारोबिक सिस्टम पे चला जाता है. तो एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म इज, वी ऑल नो, इज लैक्टिक एसिड. So when this anaerobic metabolism, this keeps on working, so the lactic acid will start accumulating in the body and this produces the metabolic acidosis. तो बॉडी में क्या हुआ, ब्लड लॉस हुआ, तो बॉडी में कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज शुरू हुए. कौन से कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज थे? वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई पेरिफेरल वेसल्स में, हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट बढ़ गया. ठीक है. और तीसरा जो था वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया. ठीक है जी. उसके बाद एक चीज होती है रीपरफ्यूजन इंजरी. रीपरफ्यूजन इंजरी क्या होता है कि जब बॉडी के टिश्यूज जो है वो कुछ टाइम पीरियड तक शॉक की स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है. ऑल द इन्फ्लेमेटरी सेल्स दे गो देयर एंड दे ट्रैप्ड इन देयर एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साइटोकाइंस. वो साइटोकाइंस वहाँ जमा होती हैं. दे एक्ट ऑन द एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन्स. ये सब हमने पैथोलॉजी में पढ़ा है. ठीक है. सो व्हेन एवर देयर इज हाइपोक्सिया, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, so these inflammatory cells, they go there and they start producing cytokines, and these cytokines, they act on the capillary endothelium, and these capillaries, they becomes more, they cause the damage to the endothelium, so these capillaries become more leaky. तो fluid क्या होता है कि from intravascular space they start going into the extravascular space and they develop the tissue edema, interstitial edema, and this state is called as reperfusion injury. और ये reperfusion injury कब होगी कि जब टिश्यूज कुछ देर तक एक शॉक स्टेट में रहते हैं और वहाँ पे क्या है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स मौजूद हैं. उन इन्फ्लेमेटरी सेल्स में साइटोकाइन प्रोड्यूस की, उन साइटोकाइंस ने जो कैपिलरी एंडोथेलियम, कैपिलरी मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करके उनको डैमेज कर दिया. जब हमने शॉक पेशेंट को ट्रीट करना शुरू किया, हमने उसको फ्लूइड देना शुरू किए, तो क्या
क्या हुआ कि जब वो फ्लूइड उन कैपिलरीज में जाते हैं तो कैपिलरीज बिकॉज दे हैव डैमेज एंडोथेलियम एंड दे हैव बिकम लीकी, तो वो फ्लूइड जो होता है वो इंट्रावस्कुलर स्पेस से निकल के एक्स्ट्रावस्कुलर स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो पेशेंट को इंटरस्टिशियल एडीमा, आपका पेशेंट एडीमा डेवलप करता है, तो इसको हम कहते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। अब मैनेजमेंट क्या है? एज आई टोल्ड यू, शॉक इज अ डायर इमरजेंसी, ठीक है, लाइफ और डेथ का सीन होता है, इसमें बहुत कम टाइम है हमारे पास रिस्पॉन्स के लिए, तो जब भी पेशेंट शॉक आता है वी हैव टू गिव द इमीडिएट रिस्पॉन्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू लेबल आवर पेशेंट इमीडिएटली एज ए शॉक पेशेंट, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ आवर हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हम फौरन से उसका हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वी वोंट वेट फॉर एनी काइंड ऑफ द लैब टेस्ट टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस एंड वी विल लेबल दैट पेशेंट एज शॉक। जैसे ही हमने उसको शॉक लेबल किया, हम साथ ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, ठीक है जी। वी वॉन्ट गो कि हम ये देखें कि व्हाट इज द कॉज ऑफ शॉक, क्यों शॉक हो रहा है, क्या ये वॉल्यूम लॉस हो रहा है या ब्लड लॉस हो रहा है, नहीं, इन डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। ओके, हमने हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन वो करके हमने फौरन से पेशेंट को शॉक लेवल करना है, और शॉक लेवल करने के बाद हमने इमीडिएटली रिस्पांस देना है, और वो रिस्पांस हम देंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। हम उस पेशेंट को फ्लूइड देना शुरू करेंगे। रिमेंबर वेजोप्रेसर्स, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऑल द ड्रग्स व्हिच आर वेजोप्रेसर्स, जैसे कि आपकी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन में, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। क्यों? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे ही वॉल्यूम लॉस होता है तो क्या होता है कि बॉडी का अपने कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं, और वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज कराते हैं, तो ऑलरेडी जो है वो बॉडी की वेसल्स वेजो कंस्ट्रक्टिव फेज में है, तो अगर आप वॉल्यूम देने की बजाय वेजो प्रेशर देंगे तो मजीद वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, मजीद आपकी पेरिफेरल वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, जिससे क्या होगा कि पेरिफेरल सप्लाई और डिक्रीज हो जाएगी, टिश्यू ऑक्सीजनेशन और डिक्रीज हो जाएगी, और शॉक की स्टेट और वर्सन हो जाएगी। तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कोई भी पेशेंट शॉक के साथ होता है, इन लेबल इट एज ए हाइपोवोलेमिक शॉक। कोई भी पेशेंट आपका शॉक के साथ आता है उसको हम फर्स्ट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक के तौर पे लेबल करते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट फ्लूइड्स के साथ करते हैं, एंड वी विल स्टार्ट फ्लूइड रिससिटेशन। उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेप है कि उसमें हम कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। और रिमेंबर, क्योंकि बीइंग सर्जन वी मोस्टली डील विद द हेमरेजिक काइंड ऑफ द शॉक, एंड इन हेमरेजिक काइंड ऑफ द शॉक वी नीड सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है जी। हेमरेजिक पेशेंट, अगर किसी पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है तो सर्जिकल इंटरवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ऊपर से नल खोलते हैं और नीचे से आपका बर्तन टूटा हुआ है, तो क्या होगा कि वो पानी उस बर्तन में कभी जमा नहीं होगा। तो इसी तरह हेमरेजिक शॉक में भी जब तक हम ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं करेंगे, ऊपर से हम जितना मर्जी वॉल्यूम रिप्लेस करें, उसका कोई फायदा नहीं है। सो वी हैव टू डू द सर्जिकल इंटरवेंशन टू स्टॉप द हेमरेज। ओके, अच्छा, हाउ वी रिकॉग्नाइज द शॉक, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेशेंट शॉक में है? एक जनरल कंसेप्ट की बात करती हूँ कि नॉर्मली हम जब शॉक का वर्ड सुनते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है, हमारे पेशेंट का ब्लड प्रेशर 80-60 होगा, 70-60 होगा, 70-40 होगा, तो वही पेशेंट शॉक में है। दिस इज ए वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इसको हमें चेंज करना है, ये हमें बात समझनी है, ठीक है। शॉक के लिए ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो। अर्ली मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, पेशेंट को, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो बॉडी के इमीडिएट रिस्पांस क्या होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन, टेकिकार्डिया, दो इमीडिएट रिस्पांस हैं विच आर द वेजो कंस्ट्रिक्शन और टेकिकार्डिया। तो टेकिकार्डिया की वजह से क्या होगा, पेशेंट का हार्ट रेट ज्यादा होगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन, कुटेनियस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या है कि पेरिफेरी में ब्लड नहीं जा रहा, तो पेशेंट की कोल्ड पेरिफेरीज होंगी, ठीक है जी। तो कोई भी पेशेंट आपके पास इमरजेंसी कंडीशन में आता है, उसका हार्ट रेट तेज है और उसके ठंडे हार्ट पाँव है, तो हम उस पेशेंट को लेबल कर देंगे कि दैट पेशेंट इज इन शॉक डिस्पाइट ही इज हैविंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर चाहे नॉर्मल भी है लेकिन उसका हार्ट रेट जैसे कि 100 है, 110 है, 120 और कोल्ड उसकी पेरिफेरीज हैं, तो दैट पेशेंट इज इन द शॉक। क्योंकि ब्लड बॉडीज कंपनसेटरी मैकेनिज्म व्हिच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, these compensatory mechanism they try to maintain the blood pressure until there is 30% loss of the volume, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर 30% तक बॉडी जो है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। जब 30% से ज्यादा आपका वॉल्यूम लॉस होगा तो तब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आना शुरू होगा, ठीक है। तो कोल्ड पेशेंट विद टेकिकार्डिया इज योर शॉक पेशेंट, चाहे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मली क्यों ना हो, ठीक है जी। हमने अभी बात की, हम केयरफुल हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे टू आइडेंटिफाई दैट आवर पेशेंट इज इन शॉक। उसके बाद हम फौरन वॉल्यूम रिससिटेशन स्टार्ट करेंगे। वी हैव सर्टेन एडजंक्ट्स, उसके बाद हम ये एडजंक्ट्स की तरफ देखेंगे व्हिच हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ शॉक, ठीक है जी। हमने कहा फर्स्ट स्टेप क्या है, लेबल द पेशेंट एज शॉक, do the immediate resuscitation, and second step is to identify the cause। और उस cause में हम क्या करेंगे, we will
we can use the CVP line, we can use the pulmonary artery catheter. The CVP line, central venous pressure, this will tell us about whether the patient is under load or after load. अगर आपका पेशेंट हाइपोवोलेमिया में है, ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम कम है तो CVP प्रेशर कम होगा. अगर आपका पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है, यानी कि हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा, वॉल्यूम एक्सेसिव अमाउंट में है, तो क्या होगा, CVP प्रेशर ज़्यादा होगा तो पेशेंट ओवरलोड में होगा. तो ये हमें कॉज के बारे में बताएगा. इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है या आपका पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में. चेस्ट एक्सरे आपको टेंशन न्यूमोथोरिक्स के बारे में बताएगा. पेल्विक एक्सरे आपको पेल्विक फ्रैक्चर के बारे में बताएगा जिसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होती है. और अल्ट्रासाउंड आपको किसी भी तरह के इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड और एनी काइंड ऑफ इंट्रापेरिटोनियल कलेक्शंस के बारे में बताएगा. बट अगेन दोबारा रिपीट करती हूँ कि these adjuncts should not delay your aggressive volume resuscitation. In shock patient, volume resuscitation is very 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 important. आप और कुछ करें या ना करें, you will immediately label, you will see the patient is having the cold peripheries, having severe tachycardia, having tachycardia, you will label it as shock and you will immediately save IV line and will start the fluid. ये पहला काम करना है. उसके बाद आप कोई और काम करेंगे और अपना टाइम जो है वो किसी लैब टेस्ट और इन एडजंक्ट्स में वेस्ट नहीं करेंगे. नॉन हेमरेजिक शॉक में हम अभी बात कर चुके हैं कि नॉन हेमरेजिक शॉक जो वो मायोकार्डियल कंट्यूजन और कार्डियक टैम्पोनाल में होता है. तो उसके डायग्नोसिस में हमें CVP प्रेशर, अभी हमने बात की, इसमें CVP प्रेशर ज़्यादा होगा, पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड होगा. और साथ ही इकोकार्डियोग्राफी हम कराएंगे जिससे हमें हार्ट के स्टेटस का आइडिया होगा. टेंशन न्यूमोथोरिक्स के लिए हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे. और न्यूरोजेनिक शॉक की अभी हम बात कर चुके हैं कि दिस इज सीन इन द स्पाइनल कॉर्ड डिजीज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन. जब सिंपैथेटिक टोन नहीं होगी तो बॉडी के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म थे, कौन से कंपनसेटरी मैकेनिज्म थे, टैकीकार्डिया, वेसोकंस्ट्रिक्शन. तो ये टैकीकार्डिया और वेसोकंस्ट्रिक्शन जो है ये अपना काम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं इनिशिएट हो पाएंगे बिकॉज दिस टैकीकार्डिया एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन इज मेंटेन्ड बाय सिंपैथेटिक टोन. जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, सिंपैथेटिक टोन ही नहीं है, तो टैकीकार्डिया, वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो हमारा पेशेंट शॉक में जाएगा. सेप्टिक शॉक जो दैट इज सीन इन द सीवियर इन्फेक्शन. फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटेस्टाइनल परफोरेशन के पेशेंट आते हैं और इंटेस्टाइनल देखिए परफोरेशन है, सारे इंटेस्टाइन के टॉक्सिक कंटेंट दे आर लीकिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी एंड दे आर अब्सॉर्ब, दे गो इनटू द सर्कुलेशन एंड व्हेन दीस पेशेंट दे प्रेजेंट very late, then they will go into the circulation and patient will go into the sepsis and shock. बल्कि आजकल बड़ा एक सिनेरियो कॉमन हुआ है जिसमें एक डॉक्टर साहब की डेथ हुई है septic shock की वजह से. He had intestinal perforation and he was not operated in time, due to which he went into sepsis and then went to septic shock and he expired. So this is the septic shock. Now there are different degrees of shock. ठीक है जी, according to loss of volume, कितना volume loss हुआ है उसके accordingly shock की severity होगी. अगर volume क्या है less than 15% है तो ये क्लास 1 हेमरेज है. अगर 15 to 30% है तो दिस इज क्लास 2 हेमरेज. और अगर ये 30 to 40% है तो ये क्लास 3 हेमरेज है. और अगर ये 40 से ज़्यादा है तो क्लास 4 हेमरेज है. अब एक बात गौर से देखें कि अभी हमने बात की है कि ब्लड बॉडी जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखती है 30 तक. 30% वॉल्यूम लॉस, जब 30% से ज़्यादा वॉल्यूम लॉस होता है तो तब ब्लड प्रेशर फॉल होता है. तो देखेंगे क्लास 1 और क्लास 2 हेमरेज जिसमें अप टू 30% वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो उसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा. तो ब्लड प्रेशर कब गिरना शुरू होगा? जब 30% से ज़्यादा लॉस होगा, यानी कि किसमें, क्लास 3 और क्लास 4 हेमरेज में. ठीक है जी, तो क्लास 3 और क्लास 4 हेमरेज में आपको ब्लड प्रेशर नीचे जाना शुरू होगा. तो क्लास 1 हेमरेज जिसमें लेस देन 15% लॉस है, फॉर एग्जांपल ब्लड डोनर, किसी बंदे ने ब्लड दिया है उसका लेस देन 15% लॉस हुआ है, उसमें मिनिमल साइंस होंगे और हमें उसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती. क्लास 2 हेमरेज 15 to 30% जिसमें 750 to 1500 ml है. इसमें क्या होगा, पेशेंट को माइल्ड टेकिकार्डिया, टिकिपनिया होगा, पल्स प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, पेशेंट एंग्जाइटी होगी और यूरिनरी फ्लो जो विल बी 20 to 30%. इस ऐसे पेशेंट में हमने जस्ट क्रिस्टलॉइड देने हैं, जस्ट हमने फ्लूइड्स देने हैं. क्लास 3 हेमरेज जो है दैट इज द हेमरेज जिसमें 30 to 40% यानी कि 2000 ml, एक एडल्ट पेशेंट का 2000 ml 2 लीटर ब्लड निकल गया है तो वो क्लास 3 हेमरेज में है. तो उसमें साइंस ऑफ इनएडिक्वेट परफ्यूजन आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसको मार्क टेकिकार्डिया होगा, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, टिकिपनिया, उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, उसमें साइंस ऑफ मेंटल चेंजेस आना शुरू हो गए, उसका ब्लड प्रेशर नीचे गिरना शुरू हो गया. ठीक है जी. सो व्हाट हैपन इन दीज पेशेंट, वी नीड ट्रांसफ्यूजन. जब इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो उसको हमें ब्लड से रिप्लेस करना है. तो ऐसे पेशेंट में क्लास 3 हेमरेज में जिसमें ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो गया, वी हैव टू गिव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. क्लास 4 हेमरेज क्या है, जिसमें मोर देन 40% ब्लड लॉस है. क्लास 4 हेमरेज जिसमें मोर देन 40% ब्लड है, दीज आर द इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ. ये बहुत ही रिस्की पेशेंट है. क्या होगा, सिवियर टेकिकार्डिया, सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, पेशेंट
देयर इज मार्क डिप्रेशन इन मेंटल स्टेटस, पेशेंट आपका बेहोश हो सकता है, बिल्कुल पेल स्किन, कोल्ड पेरिफ्रीज है, यूरिन आउटपुट नील है, तो क्या है कि ऐसे पेशेंट में हमें इमीडिएट, एक तो हमने रैपिड ट्रांसफ्यूजन देनी है, दूसरा हमने इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है। ठीक है जी, तो हमने रिप्लेस करने के साथ साथ हमने जो है वो हेमरेज को स्टॉप करना है। उसके बाद अगर क्या होता है कि पेशेंट का मोर देन 50% लॉस हो जाता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, पल्सलेस बीपीलेस। हम कहते हैं कि जी पेशेंट पल्सलेस बीपीलेस हो गया, यानी कि उसका पल्स और बीपी रिकॉर्ड नहीं हो रहा और पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, तो उसका मतलब है पेशेंट का मोर देन 50% ब्लड लॉस हो गया। ठीक है जी, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अप टू वॉल्यूम की हम बात कर चुके हैं, 750, 750 टू 2000 ml अप टू 15%, ये सारा भी डिस्कस किया। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको हार्ट रेट के बारे में बता दूं। क्लास 1 में हार्ट रेट 100 से नीचे ही रहेगा, क्लास 2 में 100 से ज़्यादा होगा, और क्लास 3 में जो है वो 120 से ज़्यादा होगा, और क्लास 4 में 140 से ज़्यादा होगा। ब्लड प्रेशर हम बात कर चुके हैं, क्लास 1 2 में नॉर्मल होगा, 3 4 में नीचे जाएगा। पल्स प्रेशर क्लास 1 में नॉर्मल होगा, लेकिन क्लास 2 3 से नीचे जाना शुरू होगा। रिस्पिरेटरी रेट आपका जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शॉक बढ़ेगा, रिस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा। 1 में 14 to 20, 20 से 30, 30 से 40 और मोर देन 40 ये जाएगा। ठीक है जी, यूरिन आउटपुट जो मोर देन 30 होगी, 20 to 30 और 5 to 15, और जो है वो ऑलमोस्ट 4 में निग्लिजिबल नील यूरिन आउटपुट हो जाएगी। पहले क्या होता है, जब इनिशियल स्टेजेस ऑफ शॉक में होता है तो पेशेंट एंग्शियस होता है, इरिटेबल होता है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, फिर कंफ्यूज के साथ लेथार्जिक होता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। तो क्लास 1 2 जो कि माइल्ड हेमरेज है, जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उसमें हमें जो रिप्लेसमेंट देनी है वो क्रिस्टलाइट की फॉर्म में देनी है। जबकि क्लास 3 और 4 विच है तो सीवियर फॉर्म, तो उसमें हमने क्या है कि क्रिस्टलाइट के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देनी है, और साथ ही हमने जो है वो वी हैव टू डू द सर्जिकल इंटरवेंशन टू स्टॉप द हेमरेज। ठीक जी, उसके बाद क्या होता है कि अब ज़ाहिर है पेशेंट को ट्रॉमा हुआ तो पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी या पेशेंट को फ्रैक्चर होगा, तो अब डिफरेंट टाइप में डिफरेंट अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ ब्लड होता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं कि अगर फलानी बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो कितना लॉस है, पर्टिकुलरली फीमर और पेल्विस के बारे में पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि कितना फ्रैक्चर हो तो कितना ब्लड लॉस होता है। तो ये देखेंगे टिबिया और ह्यूमरस में जो वो 750 ml ब्लड लॉस होगा उनके फ्रैक्चर में, फीमर फ्रैक्चर में 1500 ml। तो आपको पेशेंट अगर फीमर फ्रैक्चर के साथ है तो आप देखेंगे 1500 ml वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपका जो है वो क्लास 3 शॉक में जा रहा है। पेल्विस में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, 2 to 3 लीटर होता है, और सॉफ्ट टिश्यू में ज़्यादा डीमा होता है, वो हम बात कर चुके हैं। ठीक है जी, हम ये बात कर दी हमने की कि हम डायग्नोसिस इमीडिएटली ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड हमने किया, ट्रीटमेंट हमने साइमल्टेनियसली फ्लूइड स्टार्ट शुरू कर दिए, और ये भी हम बात कर चुके हैं कि हम सारे शॉक पेशेंट को इनिशियली हाइपोवोलेमिक लेबल करेंगे। ठीक है जी, हम विल लेबल ऑल द पेशेंट एज हाइपोवोलेमिक शॉक। सो हेमरेजिक शॉक की हम बात पहले भी हम ये कर चुके हैं कि हमने 2 काम करने हैं हेमरेजिक पेशेंट में, ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, वॉल्यूम रिप्लेस करना है। खाली वॉल्यूम रिप्लेस करने से काम नहीं चलेगा, अगर वॉल्यूम निकलता जा रहा है तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। तो वी हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग साइमल्टेनियस, लेकिन ये सारे काम हमने साइमल्टेनियसली करने हैं। ये नहीं कि हम पहले वॉल्यूम देते रहे या फिर हम पहले ब्लीडिंग स्टॉप करते रहे और फिर हम कहेंगे ब्लीडिंग रुकेगी तो हम वॉल्यूम देंगे, नहीं, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली चलेंगे, क्योंकि शॉक पेशेंट की मैनेजमेंट में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ये ट्रॉमा में आप जो है जब जाएंगे फाइनली वगैरह में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेस। जब हमारे पास इमरजेंसी में ट्रॉमा और एक्सीडेंट के साथ पेशेंट आता है तो हमारे पास प्राइमरी सर्वे होता है, सेकेंडरी सर्वे होता है। प्राइमरी सर्वे में हम क्या करते हैं, ABCD, ए मीन एयरवे, हम पेशेंट का एयरवे देखेंगे, उस ब्रीदिंग वो ब्रीथ नॉर्मल कर रहा है कि नहीं और उसकी सर्कुलेशन कैसी है, और देन हम उसको किसी एनी फॉर्म ऑफ डिफॉर्मिटीज के लिए देखेंगे, और एक्सपोजर इसमें उसकी पूरी बॉडी एक्सपोज करके देखेंगे कि और कौन सी इंजरीज है। सो एयरवे पहले हमने मेंटेन करना है। सिंपल मैनूवर्स है डिफरेंट टाइप के, हम जो अगर आपका पेशेंट जो है वो एयरवे मेंटेन नहीं कर रहा तो हम उसका हेड टिल्ट, जॉ थ्रस्ट, चिन लिफ्ट करते हैं, अगर नहीं तो हमारे पास लारिंजियल एयरवेज होते हैं, अगर नहीं तो डेफिनेटिव एयरवे के लिए जो वो ETT पास करते हैं। ब्रीदिंग हम देखेंगे कि हमारा पेशेंट ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, उसको फिर हम सप्लीमेंट्री एयरवे सिक्योर करने के बाद ऑक्सीजन देंगे। और सर्कुलेशन हम ऑब्वियसली जो हेमरेज का पेशेंट है तो उसको वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो हम वाइड बोर IV लाइन सेव करके उसको वॉल्यूम रिप्लेसमेंट शुरू कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो अगर आपका पेशेंट बोल रहा है ना तो उसका मतलब है उसका एयरवे और ब्रीदिंग दोनों ठीक है। उसके बाद
क्या है कि हमने बेस लाइन रीडिंग्स, हमने फिर पेशेंट की वाइटल साइंस देखने होते हैं। जब हम पेशेंट को हमने शॉक लेवल किया, उसको फ्लूइड देना शुरू कर दिया, तो फिर हमने फ्लूइड का रिस्पांस देखना होता है। उस रिस्पांस के लिए हम पेशेंट की वाइटल साइंस देखेंगे। हम देखेंगे कि पेशेंट का हार्ट रेट बेहतर हो रहा है कि नहीं, पेशेंट के रेस्पिरेटरी रेट बेहतर हो रहा है कि नहीं, पेशेंट का जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन बेहतर हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, उसकी यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो रही है, और उसका मेंटल स्टेटस नॉर्मल हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारे शॉक जो हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उससे इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। अगर कोई ऑब्वियस हेमरेज है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। अब जो है ना, ये जो नई 27 एडिशन बेले का आया है, उसमें जो है इस ABCD को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने ए के आगे छोटा सा C लगा दिया है, तो वो अब हो गया CABCD। अब वो जो C है ना, दैट इज फॉर कंट्रोल ऑफ हेमरेज, कंट्रोल ऑफ ऑब्वियस हेमरेज। तो अब जो नई गाइडलाइन है वो ये कहती है कि आप जो है वो इवन एयरवे से भी पहले अपने जो अगर ऑब्वियस हेमरेज है उसको एयरवे से भी पहले कंट्रोल करें। ठीक है। उसके बाद वाइट बोर आईवी लाइन, और वाइट बोर आईवी लाइन के साथ हम फ्लूइड और परफ्यूजन शुरू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, हाँ, ये एक थोड़ी सी स्लाइड मैं आपको बता दूं कि अभी हम थोड़ी सी पहले भी हमने बात की कि जो अगर पेशेंट हमारे पास आता है CNS के साथ और वो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस हो रहा है और इस तरह के दे रहा है, तो उसको हम जो है वो इंट्राक्रेनियल इंजरी या हेड इंजरी के तौर पे लेबल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स है ये हाइपोवोलेमिक शॉक में भी होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या है, सेरिब्रल परफ्यूजन कम होती है, ब्रेन ऑक्सीजनेशन कम होती है, तो क्या होता है कि पेशेंट जो वो अनकॉन्शियस होता है और साइंस ऑफ दीज हाइपोपरफ्यूजन, सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास ट्रॉमा के साथ आया है और वो अनकॉन्शियस है या वो इरिटेबल है या उसमें कोई CNS के साइन आए हैं, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि उस पेशेंट को हेड इंजरी है। दैट मे बी बिकॉज ऑफ सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन और डिक्रीज ऑक्सीजनेशन। ठीक जी। उसके बाद गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, स्टमक बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो वो हार्ट के ऊपर प्रेशर करता है, तो हमने NG ट्यूब पास करके उसको डीकम्प्रेस करना है। अब क्या है कि हम साथ में हमने फ्लूइड, हमने 2 वाइड, हमने ABCD कर लिया पेशेंट का, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, हमने 2 वाइट बोर आईवी लाइन सिक्योर कर ली हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट को फ्लूइड हमने शुरू कर दिया, उसके साथ हम पेशेंट को ज़ायरा फॉलिस कैथेटर पास करेंगे, उसमें देखेंगे कि पेशेंट की यूरिन आउटपुट बेहतर हुई है कि नहीं। और ये जो IV लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो IV लाइन में एक चीज़ आप देखिएगा कि हम वाइट बोर IV लाइन का मतलब है 16 गेज, जो ग्रे कलर का आपका ब्रेनला सबसे बड़ा होता है, वो हम पास करते हैं। CVP लाइन इज नॉट गुड फॉर द वॉइस रेसिटेशन। क्यों? वॉल्यूम रिससिटेशन के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी होती है? जिनकी लेंथ कम हो और उनका बोर ज्यादा हो। अब CVP की लेंथ ज्यादा होती है, बोर कम होता है, तो CVP इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर द वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। दैट इज बेटर फॉर मॉनिटरिंग द पेशेंट, दैट इज बेटर फॉर मॉनिटरिंग द फॉर सेंट्रल वीनस प्रेशर, जो कि हमें इस वॉल्यूम रिससिटेशन की एडिक्वेसी के बारे में बताती है। अच्छा जी, ये डिफरेंट आपको पास स्किल्स होनी चाहिए। जैसे हमने पहले बात की, अगर आपको आपके पेरिफेरल लाइन आपसे सेव नहीं हो रही, पेशेंट आपका शॉक में बहुत ज़्यादा ब्लीड करके उसकी वेन्स कोलैप्स हो गई हैं, वेजोकंस्ट्रक्शन की वजह से आपको वेन नहीं मिल रही, तो फिर हम सर्जिकली एयरवे सिक्योर करते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं वीनस कट डाउन। इसमें मीडियल मलोलस के ऊपर जो है वो छोटा सा इंसिजन दे के ग्रेट सेफनेस वेन के अंदर जो है वो IV लाइन डालते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो अगली एक्सेस है, पेरिफेरल एक्सेस अगर नहीं हो रही तो हम सेंट्रल वीनस लाइन पास कर सकते हैं, जो कि हम इंटरनल जुगुलर वेन में और सबक्लेवियन वेन में अगेन, बट दीज आर सेंट्रल वीनस इज नॉट गुड फॉर वॉल्यूम रिससिटेशन, दिस इज गुड फॉर मॉनिटरिंग द पेशेंट। अब जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी 6 साल से उम्र कम है, उनमें हम क्या करते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वस्कुलरिटी होती है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, तो हमारे पास जो है वो बोन के अंदर एक स्पेशल किस्म की नीडल होती है, तो वो नीडल जो है वो हम टिबियल ट्यूबरोसिटी से नीचे इंसर्ट करते हैं और इंट्राऑसियस परफ्यूजन बच्चों में देना शुरू कर देते हैं जब उनमें कोई हमें लाइन नहीं मिल रही होती। अच्छा जी, ठीक हो गया, डिसाइड हो गया पेशेंट शॉक में है, फ्लूइड देना है, तो कौन सा फ्लूइड देना है? तो इनिशियली जो सबसे ज़्यादा फ्लूइड देना है हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने देने हैं क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है जी। क्रिस्टलॉइड में हमारी फर्स्ट चॉइस है रिंगर लैक्टेट, सेकंड चॉइस हमारी पास है नॉर्मल सेलाइन। तो पहला फ्लूइड हमने क्रिस्टलॉइड देना है। इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जैसे हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसके 2 वाइट बोर IV लाइन सेव करके उसको हमने फ्लूइड का बोलस देना होता है, जिसमें हमने 250 टू 500 ml ऑफ फ्लूइड हमने उसको पेशेंट को बोलस में 20 मिनट्स के ऊपर हमने देने होते हैं, और बच्चों में 20 ml पर केजी ये बोलस हम देंगे। और उसके बाद वी विल असेस द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट की यूरिन आउटपुट बेहतर हुई है कि नहीं, पेशेंट का हार्ट रेट बेहतर हुआ है कि नहीं, ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ है कि नहीं। ठीक है जी। और उस रिस्पॉन्स को देखते हुए हम पेशेंट को डिफरेंट लेबल्स लगाएंगे और फर्दर जो है वो पेशेंट की फर्दर मैनेजमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल
ये आगे स्लाइड है, यस दिस इज द स्लाइड। अगर क्या होता है कि हमने इसको हम 3 कंडीशन में डिवाइड करते हैं कि पेशेंट जो है वो रैपिड रिस्पॉन्डर है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है और नॉन रिस्पॉन्डर है। ठीक है जी। सो रैपिड रिस्पॉन्डर में क्या है कि जब हमने उसको फ्लूइड का बोलस दिया तो उसके वाइटल साइन नॉर्मल हो गए और वो नॉर्मल वाइटल साइन मेंटेन करता रहा। इसका मतलब है कि पेशेंट में कोई ऑन गोइंग लॉस नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग नहीं हो रही। तो इस ऐसे पेशेंट में हमें क्या करना है, इसमें मिनिमल लॉस है, इसमें हमने सिर्फ पेशेंट को मेंटेनेंस फ्लूइड देना है और सिर्फ क्रिस्टलाइट देना है। इसमें हमें ब्लड देने की ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैच करवा लेंगे। और ऑपरेटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत हो सकती है लेकिन कोई इतनी डायर इमरजेंसी इसमें नहीं है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमने बोलस दिया पेशेंट को, पेशेंट का हमने रिस्पॉन्स असेस किया, पेशेंट के वाइटल्स इंप्रूव हुए। जब हमने थोड़ी देर के बाद पेशेंट को दोबारा रीअसेस किया तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर दोबारा कम होना शुरू हो गया, हार्ट रेट दोबारा ऊपर होना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पेशेंट में ऑन गोइंग ब्लीडिंग है, मॉडरेट ऑन गोइंग ब्लीडिंग है। मॉडरेट ऑन गोइंग ब्लीडिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमने जो ब्लीडिंग इतनी सिवियर नहीं है, मॉडरेट अमाउंट की है, यानी जो हमने फ्लूइड उसको रिप्लेसमेंट में दिया, उसने उसको रिप्लेस तो किया लेकिन बॉडी मेंटेन नहीं कर सकी, वो निकल गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोबारा से वाइटल नीचे जाना शुरू हो गया। तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे? ऐसे पेशेंट में ऑब्वियसली हमें एक तो क्रिस्टलॉइड्स हम देंगे, साथ में हमें इसमें फ्लूइड्स देंगे, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें हम ब्लड अपने ट्रांसफ्यूज करेंगे और जो है इसमें ऑपरेटिव इंटरवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जो थर्ड टाइप नॉन रिस्पॉन्डर है, नॉन रिस्पॉन्डर क्या है कि जी उसमें हमने अपने पेशेंट को जब इनिशियल बोलस दिया तो इनिशियल बोलस देने के बाद पेशेंट की वाइटल्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, तो जब पेशेंट के वाइटल, इसका मतलब है कि पेशेंट में सीवियर हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस इतना ज़्यादा है कि हम जो फ्लूइड दे रहे हैं वो उसको कंपनसेट नहीं कर रहा। तो ऐसे पेशेंट में हमें इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये 3 तरह के हमारे पास पेशेंट है। तो रिस्पॉन्स असेस करके हम फर्दर अपनी मैनेजमेंट को गाइड करते हैं, यानी कि ट्रांजिएंट, रैपिड रिस्पॉन्डर, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर, नॉन रिस्पॉन्डर। ठीक है जी। तो ये हम थेरेपेटिक रिस्पांस की बात कर चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यानी कि अगर हमारा पेशेंट रैपिड रिस्पॉन्डर है तो हमें उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की खास जरूरत नहीं है, जस्ट फ्लूइड देना है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है तो उसमें ब्लड देना पड़ेगा और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और जो नॉन रिस्पॉन्डर है उसमें हमें इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी और साथ में ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये वही सारी आपकी बातें। ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्डर है आपका, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है और नॉन रिस्पॉन्डर है, ये हम सारी बातें कर चुके हैं। अच्छा जी, एक थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि जो आपके पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में होते हैं उसमें हो सकता है कि हम फ्लूइड देते हैं तो उनमें फ्लूइड से रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि उसमें इशू जो है वो वॉल्यूम में नहीं होता, उनमें इशू हार्ट के अंदर होता है। हार्ट या तो पंप नहीं कर पा रहा या डायलेट नहीं कर पा रहा, वट एवर इशू जो है वो हार्ट में है। तो हो सकता है कि आपका पेशेंट, हमने फ्लूइड दिया और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो उसको हमने लेबल कर दिया नॉन रिस्पॉन्डर। तो वो नॉन रिस्पॉन्डर जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से भी हो सकते हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये नॉन रिस्पॉन्डर जो सीवियर हैमरेज की वजह से या कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से? तो इसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट में सीवीपी लाइन, जैसे मैंने पहले आपको बात की थी कि हम सीवीपी लाइन पास करके सीवीपी प्रेशर मेजर करेंगे। अगर सीवीपी प्रेशर लो है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को सीवियर हैमरेज हो रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन टू कंट्रोल द हैमरेज। और अगर क्या होता है कि सीवीपी प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब है आपका पेशेंट ओवरलोड में, फ्लूइड तो है लेकिन हार्ट उसको पंप नहीं कर पा रहा, तो दैट पेशेंट इज इन द कार्डियोजेनिक शॉक। और दूसरा आप इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, उसमें आपको पता चलेगा। तो जब हम ट्रांसफ्यूजन, दूसरा सेक्शन है ट्रांसफ्यूजन, तो ट्रांसफ्यूजन में कहते हैं कि ब्लड इज द बेस्ट थिंग टू बी रिप्लेस्ड, क्योंकि बहुत ये एक लंबी डिबेट है, अभी इसमें हम नहीं जाएंगे कि क्रिस्टलॉइड कोलॉइड्स, हम क्रिस्टलाइड हमें देने चाहिए या कोलॉइड्स हमें देने चाहिए, तो कोलॉइड्स बेहतर है क्रिस्टलॉइड बेहतर है, वट एवर, ब्लड इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि कोलॉइड में भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती और वो ब्लड हमने अकॉर्डिंग टू टाइप स्पेसिफिक, अकॉर्डिंग टू एबीओ आरएच स्पेसिफिक ब्लड हमने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना है। अगर हमारा पेशेंट सीवियरली ब्लीड कर रहा है, हमारे पास ब्लड नहीं है, तो हम उसको ओ टाइप ऑफ ब्लड देंगे। अच्छा, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह कि हमने वार्म, हम जो ब्लड और फ्लूइड दे रहे हैं वो हमने ठंडे नहीं लगाने पेशेंट को, क्योंकि हाइपरथर्मिया इज द किलर इन पॉलीट्रॉमा पेशेंट। हम एक डेथ ट्रायड की बात करते हैं जिसमें क्या होता है कि हाइपरथर्मिया है, कोगुलोपैथी है और एसिडोसिस है। पेशेंट हमारा पहले ही एसिडोसिस में है, एसिडोसिस के बाद ट्रॉमा की वजह से ब्लड वॉल्यूम लॉस, वो पहले ही ठंडा हुआ हुआ है। ठीक है, और उसमें आप मजीद ठंडे फ्लूइड डालेंगे तो क्या होगा, पेशेंट में मजीद, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर गिरेगा, पेशेंट की कोगुलेबिलिटी मजीद कम होगी और पेशेंट का हेमरेज मजीद ज्यादा होगा। तो एक चीज होती है डेथ ट्रायड, जिसमें 3 चीजें हैं, क्या? हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस एंड कोगुलोपैथी। तो ट्रॉमा का जो हमारा पेशेंट है उसमें पहले ही वो हाइपोथर्मिक होता है, पहले ही ठंडा होता है। ठीक है, एसिडोसिस है क्योंकि एनरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और
उसके साथ ही जो है वो वॉल्यूम लॉस होने की वजह से उसके कोगुलेशन फैक्टर्स भी लॉस हो रहे हैं, तो मतलब कोगुलोपैथी भी होती है। तो मजीद अगर उसमें हम ठंडे फ्लूइड होता है तो हमें जो है वो पेशेंट को वार्म फ्लूइड्स देने हैं। ठीक है जी। ऑटो ट्रांसमिशन क्या होती है? ऑटो ट्रांसमिशन का मतलब पेशेंट का ब्लड उसी को ही लगा दिया जाए। दो तरह से किया जा सकता है, जैसे कोई इलेक्टिव प्रोसीजर होता है। इलेक्टिव प्रोसीजर में क्या होता है कि कुछ लोग जो वो 3 वीक्स और 4 वीक्स बिफोर अपना ही ब्लड जो है वो डोनेट कर देते हैं, ब्लड बैंक में सेव करा लेते हैं, और ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है उनको वही ब्लड दिया जाता है। और ट्रॉमा पेशेंट में क्या होता है कि मसिव हेमरेज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि तेरा स्पेसिफिक सिस्टम्स होते हैं जो कि उस ब्लड को फिल्टर करके दोबारा उसी पेशेंट को लगा देते हैं। कोगुलोपैथी की मैंने आपको बात की कि कोगुलोपैथी दो ट्रॉमा पेशेंट में कोगुलोपैथी होती है। कोगुलोपैथी जो है जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड की ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होती, तो फर्दर हेमरेज होता है। तो कोगुलोपैथी जो है वो एक तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन, हम बहुत ज़्यादा पेशेंट को फ्लूइड दिए जा रहे हैं, तो डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी होता है। डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड देने की वजह से जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो पेशेंट को फर्दर कोगुलोपैथी होती है। और हाइपोथर्मिया की वजह से भी कोगुलोपैथी होती है। तो कोगुलोपैथी को ट्रीट करने के लिए हमने क्या करना है, एक तो पेशेंट को रीवार्मिंग करनी है, पेशेंट को वार्म फ्लूइड्स देनी है, पेशेंट को हमने FFPs देने हैं, प्लेटलेट्स देने हैं। ठीक है जी। तो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। स्पेशल कंसिडरेशन। अच्छा जी, एक और बात आपको बताई जी कि जो हमें पता है कि जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनमें जो बॉडी के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म वीक हो चुके होते हैं, तो उनमें वैसा रिस्पांस नहीं आता। अगर उनमें वॉल्यूम लॉस होता है तो वो उस तरह से उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन और टेकिकार्डिया नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनमें जो है वो उस तरह का रिस्पांस आपको नजर नहीं आएगा, उस तरह का टेकिकार्डिया नजर नहीं आएगा। एक ओल्ड एज पेशेंट नॉर्मल हार्ट रेट के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो इट डजंट मीन कि वो शॉक में नहीं है, वो पेशेंट शॉक में हो सकता है क्योंकि उसके रिस्पॉन्सेस, बॉडी के रिस्पॉन्सेस इतने अच्छे नहीं हैं। और ये पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन को पूरी टॉलरेट करते हैं। जैसे एथलीट्स में हार्ट रेट कम होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है, तो उसमें भी हाइपोवोलीमिया की वजह से टेकिकार्डिया प्रोड्यूस नहीं होता है। इस तरह प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में हाइपरवोलीमिया, बहुत ज़्यादा फ्लूइड बॉडी में जमा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो ही abnormality में आना शुरू होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी एक्स्ट्रा हैं। ठीक है जी। ये ट्रॉमा का विशियस साइकिल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ट्रॉमा, ये भी हमने बात की कि एक्टिव हैमरेज है, ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस की वजह से क्या है, पेशेंट को हाइपोथर्मिया हुआ है, पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है। ये कोगुलोपैथी की जो भी मैं आपको बात करी थी, ये उसकी प्रेजेंटेशन है। क्या है कि हैमरेज, ब्लड लॉस हो जा रहा है, टेम्परेचर बॉडी का कम हो रहा है, एनरोबिक रिस्पिरेशन की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, और पेशेंट को कोगुलोपैथी हो रही है, साथ में हम वॉल्यूम रिप्लेस कर रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं, तो फिर कोगुलोपैथी होती है। तो ये एक विशियस साइकिल चल पड़ता है। ठीक है जी। तो जस्ट दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं। इम्पॉर्टेंट पेशेंट, शॉक की बात है तो शॉक इज़ द डायर इमरजेंसी, इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें डिलेड रिस्पॉन्स कैन किल द पेशेंट। तो इसमें टाइम इतना कम होता है कि हम इतना टाइम नहीं है कि हम डायग्नोसिस बैठ के बनाते रहें, तो हमने इमीडिएटली ऑन द बेसिस ऑफ आवर क्लिनिकल असेसमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री वी विल मेक द डायग्नोसिस एंड साइमल्टेनियसली वी विल स्टार्ट आवर ट्रीटमेंट। एंड उस ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, वी विल सेव वाइड बोर IV लाइन, वी विल गिव द फ्लूइड एंड वी विल स्टार्ट ब्लड रिप्लेसमेंट इफ इट इज अवेलेबल। और उसके बाद जो होता है कि साथ ही क्योंकि बीइंग सर्जन हमारा मेनली जो हम डील करते हैं वो ट्रॉमा पेशेंट के साथ डील करते हैं, हम हेमरेजिक शॉक के साथ डील करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी वी हैव टू स्टॉप द हेमरेज, वी हैव टू कंट्रोल द हेमरेज। ठीक है जी। तो हेमरेज without controlling hemorrhage, volume resuscitation और blood replacement is unnecessary। तो हमने कोशिश करनी है कि हम इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे कि हम जो है वो पेशेंट को साइमल्टेनियसली ऑपरेटिव इंटरवेंशन करेंगे और साथ ही फ्लूइड्स देंगे। उसके बाद ये करने के बाद हम पेशेंट में कॉजेज ऑफ शॉक जो वो सेकेंड स्टेप के ऊपर आता है कि पहले हमने पेशेंट को क्लिनिकल बेसिस के ऊपर लेबल किया शॉक को, उसको हमने जब फ्लूइड दिए, उसके बाद हम कॉज देखेंगे कि वेदर ये कॉज जो है वेदर दिस इज द हेमरेजिक शॉक और नॉन हेमरेजिक शॉक। और इसी तरह से हम फ्लूइड दे के हम पेशेंट का रिस्पॉन्स असेस करते हैं कि रैपिड रिस्पॉन्डर हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर हैं, नॉन रिस्पॉन्डर हैं। ये लेबल करने के बाद फिर हम पेशेंट की फर्दर मैनेजमेंट प्लान करते हैं। वो हम ये बात की है कि रैपिड रिस्पॉन्डर में हमें जस्ट मेंटेनेंस फ्लूइड की ज़रूरत होती है, इसमें कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होता, उनको और ज़्यादा
इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर का मतलब है कि उसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग लॉस हो रहा है, तो इसमें हमें जो है वो फ्लूइड्स के साथ साथ ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसमें हमें जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और नॉन रिस्पॉन्डर वो लोग होते हैं जो कि फ्लूइड्स को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है हमें क्या है, इसका मतलब है कि उसमें हेमरेज इतना ज़्यादा है कि जो हम फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हमें सर्जिकल इंटरवेंशन, इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। जब तक हम हेमरेज को कंट्रोल नहीं करेंगे, जितना मर्जी रिप्लेस कर लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है जी। उसके बाद पेशेंट का जैसे इनिशियल रिस्पॉन्स या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के बारे में बताता है, और साइंस ऑफ जो है वो हाइपोपर्फ्यूजन पोटेंशियल ठीक मैकेनिज्म है जिसमें टैकीकार्डिया, कोल्ड पैल्पीज होती हैं, ब्लड प्रेशर जो वो मेंटेन होता है, ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद prompt resuscitation of perfusion with the delivery of oxygen to the cell, aerobic metabolism, वेजोप्रेसर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हर पेशेंट को हमने इनिशियली हाइपोवोलेमिक शॉक करना कंसिडर करना है। कोई भी पेशेंट आता है तो उसको हमने स्टार्ट में ही कार्डियोजेनिक शॉक या सेप्टिक शॉक लेबल करके उसमें कोई वेजोप्रेसर या जो कार्डिक ड्रग्स हैं, हमारे आइनोट्रॉप्स हैं, ये हमने स्टार्ट नहीं कराने। हमें हमेशा वॉल्यूम देना है। हर शॉक को हमने जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक कंसिडर करना है। वॉल्यूम देने के बाद उसका रिस्पॉन्स असेस करेंगे, उसका फिर कॉज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे। सो वेजोप्रेसर या contraindicated in the management of hypovolemic shock. CVP line की बात भी हमने पहले कर चुके हैं। PVP line is not good for volume replacement. It is just for monitoring the rate of fluid administration the selected patient. ठीक है जी, and that's it. 5 minutes हैं अभी।